دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب شمشاد قادری صاحب، جو عوامی جہدکار ہیں اور عوامی مشکلات کو دور کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ قادری صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے پیغام ٹی وی میں۔ آج کی بات پروگرام میں آج بات کروں گا آزادی کے 75 سالوں کی۔ قادری صاحب، آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد میں 75واں یوم آزادی منایا گیا 15 اگست کو۔ آپ نے اور ہم نے سبھی نے دیکھا ہے کہ نئے شہر سے زیادہ پرانے شہر میں جشن منایا گیا، بہت زیادہ منایا، پرچم کشائی انجام دی گئی۔ تو یہاں پر اگر ہم زعفرانی جماعتوں کی بات کریں تو آزادی کے پرچم لیے کم ہی نظر آئے، ایسے جیسے کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ حب الوطن کون ہے۔ دیش کا ہر ہندوستانی اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، تو 75 سالوں سے اس طرح نہیں کیا گیا، تو اس سال کرنے کی کیا وجہ تھی آپ کی نظر میں؟ یہ کیا وجہ ہے رہی کہ 75 سال کا جشن اس بڑے انداز میں زبردستی منوایا گیا لوگوں سے؟ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں کچھ کہنے سے پہلے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے، ڈائمنڈ جوبلی کے ان تقاریب اور ہندوستان کی آزاد ہوئے 75 سال جب ہو چکے ہیں، تو میں ایک بھارتی ہونے کے ناطے تمام بھارت کے رہنے والوں کو شمشاد قادری اور تمام ٹیم کے جانب سے دل کی گہرائیوں سے ڈائمنڈ جوبلی تقاریب کی میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جس طریقے سے تقاریب منائی جا رہی ہیں کہ واقع ہم کو ان تقاریب میں خوشی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، مگر یقیناً جب 75 سال آزاد ہو کے ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے تو یقیناً تمام مسلمانوں کے ساتھ تمام ہندوستان کے اقوام اس 75 سالہ تقاریب میں اپنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا واجد صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ زعفرانی جھنڈے تو کم نظر آئے، مگر آج ایک میں بڑا ہی اچھا لگا مجھے آپ نے جو سوال کیا کہ پرانے شہر میں، آج جو پرانے شہر میں جس طریقے سے جشن منایا گیا، مسلمانوں نے، مدرسوں میں علماء کرام نے اور دوسرے ہندو بھائیوں نے جس طریقے سے جشن آزادی کا 75 سال کا جو جشن منایا، وہ ناقابل فراموش ہے اور ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ جب میں پرانے شہر کا تقریباً 10 سے 12 اس میں جب اس پروگرام میں نے اپنے آپ کو شامل کیا تو دیکھ کے یہ خوشی ہوئی کہ نوجوانوں سے لے کے 10 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک خوشی کا جشن مناتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ناچ گانے میں ایسا مصروف رکھے۔ یہ دیکھ کے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان فرقہ پرستوں کو، ان بھگوا جھنڈوں کو یہ بات معلوم ہو کہ جو آج مسلمانوں سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، اگر یہ 75 سالہ جشن آزادی نہ حیدرآباد سکندرآباد نہیں بلکہ سارے ہندوستان کی نیوز اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر اس مسجد میں، ہر اس مدرسے میں یہ جشن بڑے ہی شاندار پیمانے سے اور عالی شان پیمانے میں منایا گیا۔ تو میں اب ان فرقہ پرستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا ہمارا جو ہے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ایک شعر عرض ہے حاجی صاحب، اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، جب میں آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا۔ کیا بات ہے! تو یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ہندو مسلمان کو لڑا کر انہیں ان کے بیچ خلیج پیدا کرتے ہوئے، نفرت کے بیج بوتے ہوئے اقتدار تک پہنچنے کی کاوشوں میں لگے ہیں، خیر انہیں چھوڑیے۔ قادری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 75 سال ہو گیا دیش کو آزاد ہوئے، تلنگانہ حکومت نے مسلم مجاہدین آزادی کو فراموش کر دیا، پیپر میں جو اشتہارات دیے گئے اس میں مسلم ناموں کو شامل نہیں کیا گیا، ان کی تصاویر بھی شامل نہیں کی گئی، جبکہ KCR کہتے ہیں کہ میں ایک سیکولر CM ہوں، یا ان کے ساتھ جی حضوری کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر سیکولر چیف منسٹر۔ ٹھیک ہے، آپ سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اوکے، پھر یہ ماندانہ رویہ کیوں ہے کہ مسلم مجاہدین کو پیپر کے اشتہار میں جگہ نہیں دی گئی؟
تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ 75 سالہ ڈائمنڈ جبلی کا جو انعقاد عمل میں آیا، جو احکامات جاری کیے گئے، ہر گھر ترنگا لہرانے کی بات کی ہے، یقیناً ہم کو بڑی خوشی ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد ایک مہان خیال آیا کہ بڑے پیمانے میں منایا جائے۔ یقیناً بڑے پیمانے میں منانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں، نخات کہتے ہیں کہ حکومت اپنی ناکامیوں اور اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایسے کام کر رہی ہے، اور زبردستی گورنمنٹ سرونٹس کے تنخواہوں سے کاٹ کر انہیں دیش کا پرچم دیا جا رہا ہے۔ بالکل آپ جیسا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو ناراض کر کے قومی تہوار منایا جا رہا ہے۔ زبردستی قومی تہوار، یہ دیکھیے ہر چیز خوشی منانا ہے، غم منانا ہے، ایک اپنے اپنے دل سے ہونا چاہیے۔ یقیناً میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں جو ہے حب الوطن ہوں، اور وطن پہ جان دینے کے لیے ہر طریقے سے میں تیار ہوں۔ یقیناً 75 سالہ ڈائمنڈ جوبلی منانا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور ہم منائیں گے بھی، منانے بھی رہے ہیں۔ مگر یہ جو جس طریقے سے جشن کو منانے کے احکامات جاری کیے گئے، میں یہ کہنا چاہوں گا حافظ صاحب کہ ان 75 سالوں میں ہم کو، تمام عوام کو، تمام سیکولر ذہن رکھنے والوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان 75 سالوں میں ہم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا صحیح طریقے سے تجزیہ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا کہ جب آزادی ہم کو ملی، مسلمان رہنماؤں نے، مہاتما گاندھی نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے، ٹیپو سلطان نے، سردار پٹیل نے جس اپنے جانوں مالوں کی ہر طرح سے قربانی دے کر اس آزادی کو حاصل کیا تھا۔ آزادی کو اصل حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا واجد صاحب کہ تمام اقوام ہندوستان میں رہنے والے، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، اب خوشحال زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا تھا کہ اب ملک آزاد ہو گیا ہے، ہم کو آزادی سے اپنے اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے، اپنے اپنے مذہب کو جو ہے ان کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو ہم عمل کرتے ہوئے ہم بڑی آزادی سے، بڑے ہی اچھے طریقے سے ہماری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ مگر پچھلے 8-10 سالوں سے، 2014 سے جو ملک کا ماحول جو نفرت پھیلا دی گئی ہے، یہ چند مٹھی بھر عناصر جو بھیگوا پارٹی کے لوگ ہیں جو نفرت کا ماحول پیدا کر چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کا جو 75 سالہ جشن ہے، ان کے اس ناپاک ارادوں کی وجہ سے کچھ پھیکا پڑتا نظر آ رہا ہے۔ پھیکا نہیں، دنیا، مودی جی فصیل پر کھڑے ہو کر لال قلعے کی کہتے ہیں کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے، خواتین کی عزت کی جائے۔ وہیں دوسری جانب گجرات میں جو عصمت دری کے مجرم ہیں، جیل کی سزا کاٹ رہے تھے، انہیں رہا کیا گیا، عام معافی دی گئی، جبکہ اس معاملے میں عام معافی دینے پر پابندی ہے۔ عصمت دری کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو سولی پہ چڑھانا ہے، انہیں رعایت نہیں دی جاتی، انہیں رہائی نہیں دی جاتی، مگر پھر بھی دیا گیا۔ تو قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور مودی جی کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مودی کہتا ہے کہ دیکھو ہندوستان کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جبکہ لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہندوستان کی شبیہ دوسرے ممالک کے سامنے خراب ہوئی ہے، بگڑ چکی ہے۔ جب سے بی جے پی نے اقتدار سنبھالا ہے تب سے ہندوستان کی شبیہ خراب ہوئی ہے۔ لوگ بڑے بڑے صنعتکار ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بسے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ اچھے دن کی بات کرتے ہیں، کیا اچھے دن ہیں؟ کہاں ہے؟ آپ 75 سال آزادی کا جشن جو منا رہے ہیں، اگر ان 75 سالوں میں جو بھی ہوا ہے، جو بھی حکومتوں نے کام کیا ہے، آج تک کوئی اچھے کام نہیں ہوئے۔ اسی لیے آج بھی ہم پانی خرید کر پی رہے ہیں۔ حکومتوں نے عوام کے لیے پانی کی سربراہی کو تک یقینی نہیں بنایا۔ جب آپ غریب عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا اچھا ہوا، تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے تو لوٹا ہے لوگوں نے۔ ہندوستان کی شبیہ یہاں خراب ہوتی ہے۔ ہندو مسلمان دونوں کے درمیان جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ہندوستان کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ کوئی سر پھرا کہتا ہے کہ دیکھو، ریمارک کر دیتا ہے، تو دوسرے دیشوں میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ آپ صحیح سمجھتے ہیں خالد صاحب کہ 75 سالہ جشن اگر ہم محبت، اخوت، بھائی چارگی سے اگر بناتے تو شاید یہ ہمارے لیے جشن ہوتا۔ بالکل، بہت ہی بہترین اور اچھا سوال آپ نے کیا واجد صاحب۔ میں عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ میں ایک سماجی جہدگار ہوں اور آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن کا نیشنل پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ اصل مقصد یہ
75 साल डायमंड जुबली अगर मनाना वाकई आप मना रहे हैं तो इसमें 4 चांद जब लगते कि मिस्टर मोदी आपने जो 2 करोड़ जायदादों का वादा किया था, गुर्बत को दूर करने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का आपने वादा किया था, 15 लाख अवाम के जो है अकाउंट में डालने का आपने वादा किया था, और मुसलमानों के साथ साथ पिछड़े तबकात के हालात दुरुस्त करने का जो आपने वादा करके कुर्सी हासिल की, अगर वाकई आप अपने वादों में पूरे उतरते, आप अपने जो है वादे जो किए उन पे अगर पूरे उतरते, तो मैं समझता हूं कि आज ये 75 साल डायमंड जुबली का जो मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इसमें खुशियों में बहुत ज्यादा दोबाला हो सकता था। मगर मिस्टर मोदी, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप ये सोचिए कि क्या वाकई 75 साल गोल्डन जुबली का जो आपने अहकामात जारी किए, पटेल चाला जुबली मनाने का जो आपने प्रोग्राम बनाया, जिस तरीके से आपने झंडे तिरंगा लहराने की बात की, यकीनन हर मुसलमान, हर हिंदुस्तानी, हर सच्चा हुब्बुल वतन ये चाहेगा कि हिंदुस्तान का नाम ज्यादा से ज्यादा रोशन हो, और ये 75 साल तकारीब बढ़ के अगस्त के महीने तक नहीं, आने वाले अगस्त अगर हम इसको मनाएंगे तो भी हमारे लिए खुशी का एहसास करना बहुत कम होगा। मगर मिस्टर नरेंद्र मोदी, अब भी आप समझ जाइए, अगर वाकई आपको हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, आप जो लाल किले पे खड़े रह के हमने तरक्की की, आप देखिए आपकी छवि जो सारी दुनिया में बिगड़ी हुई है, अगर आप उसका सही तरीके से अगर तज्जिया करेंगे तो जब आपको एहसास होगा कि इन 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो इसके लिए आपको ये चाहिए था कि 75 साल गोल्डन जुबली मनाइए। यकीन हम सब जो है खुश हैं, हर जमहूरियत पसंद हिंदुस्तानी खुश है, मगर इन सब चीजों के लिए आपने किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं किए, और खास तौर से ये धूमधाम असल मनाने का आपका मकसद ये था कि आपके गलत पॉलिसियों को छुपाना, नोटबंदी करना, और आपके जो है तलाक 3 तलाक का कानून लाना, मुसलमानों पे जबरन मुसल्लत करना, गैर जरूरी किस्म के करना, और उसके अलावा जो बिछड़े तबकात जो है ये आस उम्मीद पे थे कि नरेंद्र मोदी आने के बाद जो है सबका साथ सबका विकास होगा। तो मैं कहना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कहते हैं सबका विनाश, सबका विनाश। तो आप, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या वाकई आप जो बड़ी बड़ी बातें लाल किले से कर रहे थे कि आपने की, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ? मैं इस चैनल से ये नरेंद्र मोदी से ये बात का मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दीजिए आवाम के सामने कि क्योंकि आप एक आवाम के मुंतखब जो है नुमाइंदे हैं, क्या आपने सबका साथ सबका विकास किया? नजर डालिए आज पिछले तबकात के ऊपर कि किस तरीके से आज मुसीबत की जिंदगी गुजार रहे हैं। नखात कहते हैं कि ये तो सिर्फ आप अपनी गलतियां और आपके अपनी जो है गलत पॉलिसियों को छुपाने के लिए ऐसे इस किस्म के जो है प्रोग्राम करके ये समझाना चाहते हैं कि आप मुहिब्बे वतन हैं। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के जमहूरियत पसंद, खुसूसी तौर पर मुसलमान जिन्होंने उलमाए कराम, जिन्होंने अपनी जानो माल की कुर्बानी दी, आज आप हमसे हमारी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना यह है बाजुए जोर कितना बाजुए खातिल में है। तो आज हमारे पर जुल्म सितम आप जो कर रहे हैं, हम तो क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे आबा अजदाद का खून इसमें में शामिल है, यकीनन मरते दम तक, आखिरी सांस तक हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जानो माल की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं वाजिद साहब। मगर नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे कौम से, वो उन वादों पर 1% भी आपने अमलावरी नहीं की। बिल्कुल सही कहा आपने खालिद साहब, अमलावरी बिल्कुल नहीं हुई। और अगर आपको नरेंद्र मोदी की छवि देखना है, सामने से देखना है, तो आप कन्हैया कुमार का, कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार का कोई बयान देख लीजिए। वो कहते हैं मोदी झूठा है, इसमें सच्चाई है। नखात भी अब बोलने लगे हैं झूठा है। तो बात यह है खालिद साहब, जब गरीबों से पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा हुआ, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा होना क्या है, वही अच्छा नहीं हुआ तो अब क्या अच्छा होगा। लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। नहीं, इसके लिए मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, मैंने यही कहा ना कि अगर आप अपने वादों पे पूरे उतरते तो आज ये डायमंड जुबली तकारीब सारी दुनिया में मिसाल करके हम पेश कर सकते थे। 460 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में कर दिया,
40 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में कर दिया। अरे ऐसे बहुत से महंगाई का तो ये हाल है, कमर तोड़ महंगाई के। और दूध दही पे भी जीएसटी लगा दिया। तो आप किस किस्म का जो है सिर्फ कारपोरेट घरानों को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों की कमर तोड़ते हुए, गरीबों पर जुल्म सितम करते हुए आप ये आजादी का जश्न मना रहे हैं। यकीनन आजादी का जश्न मनाना चाहिए। एक सेकुलर हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा भी नजरिया ये है कि आजादी का जश्न मनाना जरूर चाहिए, मगर ये उस वक्त तस्वुर सही नजर आता है हमारे आपको कि जब आपने जो वादे बड़े बड़े वादे किए थे, अगर उन वादों को पूरा करते हुए आवाम तक आप पहुंचते तो मैं समझ यकीन आपको जो है बड़ा ही अच्छा आपको इसका सिला मिलता था। अब जैसा कि बिल्किस बानो के साथ 10 लोगों को आपने जो है क्लीन चिट दे दी, उस पर मिठाइयां तकसीम की, क्या ये आपने तसव्वुर किया कि हिंदुस्तान की छवि गैर मुमालिक में किस तरीके से जाएगी? एक रेपिस्ट को आप जो है उसको क्लीन चिट देते हुए मिठाइयां तकसीम करते हैं, फिर एक तरफ लाल खीर से आपका खड़े रहकर करते हैं कि मुस्लिम खवातीन को हमने इतना इंसाफ किया, मुस्लिम तो क्या आपका यही इंसाफ है कि एक रेप करने वालों को आप अपनी जो मनमानी करते हुए कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे हैं? साहब, वो आदमी खवातीन के हुक्क की बात करता है जो खुद अपनी बीवी को छोड़कर फरार होते हुए दिल्ली आया। ऐसा आदमी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है तो आपको मज़ाक खेज़ नहीं लगता है? मजाक नहीं, बिल्कुल ये मजाक है। ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मजाक है कि 3 तलाक जो बोला उनको बहुत फायदा। अरे भाई, आपको हमारी शरीयत में मुतालखत करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर मुदाखलत आप करते, अगर वाकई हमको अगर इसका कुछ फायदा होता तो हम बोलते थे कि वाकई आपने जो काम किया है बहुत सही किया। आपका जहन कहीं और जा रहा है, मैं आपको बावर करवाता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक वो आदमी जो भगोड़ा है, अपनी बीवी को छोड़कर, सड़क पर छोड़कर दिल्ली का रास्ता पकड़ता है, तो ऐसा आदमी खवातीन के हुक्क की बात करता है तो मजाक खेज़ नहीं लगता? मजाक खेज़ है, कहाँ खवातीन के हुक्क की बात हो रही है? अब आप देखिए, खवातीन को ही नहीं समझता है। देखिए, अब इतना बड़ा मामला हो गया, बिल्किस बानो का रेप हो गया, 10 लोग आजादी से घूम के उनके लिए मिठाइयां तकसीम की गई, तो ये दस्तूर की धज्जियां उड़ाने के मुताबिक है। दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और फिरका परस्तों की और ऐसे राउडी शीटरों की जो है आप हिम्मत अफजाई करते हुए ये बात बनाना चाहते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी जबान बंद रखिए। मगर जो चुप रहेगा जबान तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो इन सब चीजों के लिए आपको हमको सोचना है, और खुसूसी तौर पे मैं तमाम सेकुलर जहन रखने वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और तमाम सेकुलर पार्टियों से अब वक्त का अहम तकाजा यह है कि अगर हिंदुस्तान की सालिमियत को बचाना है, हिंदुस्तान को फिरका वरीयत से पाक करना है, वोट का सही इस्तेमाल वही, अगर फिरका वरीयत को खात्मा करना है, और सबको तमाम हुकूक जो बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर में दिए गए, अगर तमाम हुकूक आवाम तक पहुंचाना है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी ही दर्दमंदाना अपील से, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, या फिर चाहे जितने जो है गहलोत साहब हो, ये सब लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर वाकई हिंदुस्तान की यकजहती को कायम रखना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बनाना है, और हिंदुस्तान को तरक्की की बुलंदियों को पहुंचाना है, तो अब वक्त आ गया है कि आने वाले इलेक्शन से पहले आप अपने आप का जहन ये बना ले कि इन फिरका परस्तों को किस तरीके से हुकूमत साजी करने से रोकना है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम घर का रास्ता दिखाया जाए, किस तरीके से जो नफरत का माहौल सारे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उस नफरत के माहौल को किस तरीके से खत्म करना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। वरना आने वाला वक्त आपको पूछेगा, आप अवाम के सामने जवाब दे रहेंगे कि इतने जुल्म सितम के बावजूद भी आपने अपनी जबान खामोश रखी। अगर ये वक्त भी अगर आप उठ नहीं खड़े होंगे, ना इंसाफी का मुकाबला करने के नहीं खड़े रहेंगे, तो फिर आपसे बड़ा कसूरवार कोई नहीं होगा। आपको जवाब दे, आवाम के सामने जवाब देना होगा। आज हजारों कत्ल हो रहे हैं, हजारों जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की जबान खामोश है, अमित शाह की जबान खामोश है। बहरहाल तमाम सेकुलर ताकतों से मैं इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि उठिए और अपनी जो है इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इन फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। मैं आपकी इन बातों से यह अक्स कर चुका हूं कि अगर महंगाई के सांप का मुंह भी कुचलना है तो जाफरानी जमात को हुकूमत साजी से रोकना है, तभी हम एक अच्छे भारत का तस्वुर कर सकते हैं। ये मोदी जो है, ये ख्वाब फरोश बन गया है। ये शख्स
क्योंकि लोगों में ख्वाब बांटे जा रहे हैं और 25 साल के बाद हिंदुस्तान शानदार होगा, विश्व गुरु बनेगा। 2022 की बात करते थे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, वो नहीं हुई, उल्टा किसानों को परेशान किया गया 1 साल तक। फिर यह हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां ही हैं जिनकी वजह से शोर शराबा किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात की जा रही है, क्यों? हर साल मनाते हैं, हर साल मनाया जाता है, 75 साल से मना रहे हैं, ताक़यामत मनाएंगे, अभी क्यों? ताक़यामत मनाएंगे। तो ये सब शुबेदाबाजी है। तो हम यही कहेंगे, आपने जो भी बातें की हैं कादिर साहब, तो इससे हमने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों को छुपाने के लिए और रोजगार ना दे सकने की वजह से शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए लोगों पर जबरदस्ती मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। एक आजाद मुल्क में जमहूरियत ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। तो खालिद साहब, अब हम आते हैं तलबा और तालिबात की जानिब। तलबा, वो तलबा जो सतह गुर्बत से नीचे जीते हैं, ऐसे तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स जो शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है, उनके बारे में कुछ उन्हें बताइए बच्चों को। जी साहब, तो सबसे पहले तो हमारे वाजिद साहब, मैं पैगाम टीवी का बेहद ममनून मशहूर हूँ कि उन्होंने कुछ मालूमाती प्रोग्राम रखने के लिए आप मुझे मदद किया। तो खास तौर से जब तक तालीम हासिल हम नहीं करेंगे, किसी चीज की भी तरक्की नामुमकिन है। तो इसके लिए हमको जो गुर्बत की सतह से नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए हमको आगे आना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए हमने ये ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ये बेड़ा उठाया है कि आगे जितना ज्यादा मुमकिन हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी स्कीमात आती हैं तालीम के मामले में, उनको तालीम के मामले में आगे बढ़ाने के लिए, उनमें शऊरी बेदार पैदा करने के लिए हम दिन शब रोज काम कर रहे हैं। तो इसमें खास तौर से एक बात कहना चाहूंगा कि मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज, इसका पहले नाम था। ये स्कीम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जमाने में स्कीम शुरू कर गई थी। अब उसका नाम चेंज करके बेगम हजरत महल कर दिया गया है, जो एक स्वतंत्र सेनानी थी, ये भी बेगम हजरत महल भी, तो उनके नाम से स्कॉलरशिप शुरू किया गया है। ये खास तौर से माइनॉरिटीज गर्ल्स के लिए, गर्ल्स सिर्फ लड़कियों के लिए है। माइनॉरिटीज का मतलब है 7 माइनॉरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था, वो ये माइनॉरिटीज आते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि इसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, पारसी भी है, बुद्धिस्ट भी है और जैन मत के लोग भी हैं। इन सब तमाम लोगों से, मेरी असातिज़ा से, तमाम अरबाब मजाज से और तमाम कॉलेज के इंतजामिया से और सरपरस्तों से खुशी तौर पर मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा इसको गौर से सुनते हुए इस साल कम से कम आप अपने बच्चों को जो है, अगर 9th क्लास से आपका बेगम हजरत मंजूर हो गया तो आपको इंटरमीडिएट तक, ये आपको 9th और 10th में 5,000 मिलेंगे और 11th और 12th में इसके जो है 6,000 रुपए हर साल इनको मिलेंगे तालीम कंप्लीट होने तक। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए अब ये आपकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए आप स्कूल इंतजामिया के पास जाइए। एप्लीकेशन आपको कैसा अपलोड करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो हम आपके जो स्क्रीन पे भी इसको हम डालने की कोशिश करेंगे। मगर इसके लिए आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए नौजवानों को भी, खासतौर से लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है कि तालीम हासिल करते हुए अपने माँ बाप के साथ साथ देश और मुल्क और देश का नाम भी आप रोशन कर सकती हैं, आला तालीम हासिल कर सकती है। होना इसके लिए है कि आप में अपने दिलचस्पी होना जरूरी है और इस स्कीम को हासिल करने के लिए खुद आप आगे बढ़ते हुए स्कूल इंतजामिया के पास जाके आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो मैं समझता हूं कि यकीनन आपको इसका फायदा होगा। तो ये स्कॉलरशिप फर्स्ट से लेकर PhD तक नहीं, ये तो जो है बेगम हजरत महल 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है। अच्छा, अब ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्कॉलरशिप है, वो जो है पहली जमात से 10वीं जमात तक प्री मैट्रिक, पहली जमात से 5वीं जमात तक 1,000 रुपए सालाना, 6वीं जमात से 10वीं जमात तक 5,000 रुपए सालाना, ये प्री मैट्रिक के लिए है। और इसके लिए जो है तमाम तफसीलात आपको जो है वेबसाइट पे रहेंगे, हम आपको वेबसाइट भी देना चाहेंगे। और इसके लिए जो है आपको प्री मैट्रिक का है और पोस्ट मैट्रिक का जो है, प्री मैट्रिक में और एक इंटरमीडिएट जो है 9,300 रुपए सालाना इनको मिलेंगे। इंटरमीडिएट और उससे आगे इंटरमीडिएट के तालिब इल्म जितने हैं 9,300 रुपए सालाना मिलेंगे मरकजी हुकूमत की जानिब से। हाँ, मरकजी हुकूमत की जानिब से।
डिग्री जो कर रहे हैं उनको 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे, पीजी जो कर रहे हैं उनको 6,000 रुपए सालाना इनको मिलेंगे। जी। और इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे स्कीमात हैं जिसमें इसका अंडर ग्रेजुएट जितने भी हैं उनको 25,000 रुपए सालाना मिलेंगे। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट जो है उनको 25,000 रुपए सालाना ये तो हो गया मरकजी हुकूमत का। जी। बेगम हजरत महल में जी ये चीजें हैं, हाँ, बेगम हजरत महल में भी है ना, ये मेरिट के एहसास पे होंगे। मेरिट के एहसास पे 50% कम से कम मार्क्स लाना है उनको, जी। 50% लाना है। जितना ज्यादा है उनके लिए फायदा इस वास्ते है कि 50% से ज्यादा कोई 70% लाया, कोई 80% लाया तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, उनको ये इसका रिसिप्ट सैंक्शन की जाएगी, डिग्री तक भी जाएगा, इंटरमीडिएट तक, सिर्फ इंटरमीडिएट। 9, 10, 11, 12 तक जो है हजरत बेगम महल स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा 9, 10, 11, 12 तक। 11, 12 का मतलब इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर। तो ये 5,000 रुपए की रकम कम नहीं है जनाब, ये गरीब तबके के लिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बेगम हजरत महल में डिग्री के लिए नहीं है, डिग्री के लिए नहीं है, अभी नहीं, अभी तो ये इंटरमीडिएट तक ही रखे हैं। शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके क्या आएगा। और हमने हमारी एसोसिएशन की जानिब से इस बात का भी हम मुतालबा किया था कि पहली जमात के लोगों को 5,000 और 6 से 7 तक 10,000 कीजिए। हमारा रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में है, शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मगर हमारी अपनी ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा इनके लिए पैसा मिले। तो और इसके लिए खास तौर से जनाब अली मैं आपको कहना चाहूंगा कि बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। तो स्टूडेंट 9, 10th क्लास में जो गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये मिलेगा 9 और 10 को। और जिनके वालिदीन की, जिनके सरपरस्तों की आमदनी 2 लाख से ज्यादा नहीं होना, सालाना आमदनी 2 लाख से ज्यादा नहीं होना। किसके लिए? बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 2 लाख से ज्यादा इनकी इनकम नहीं होना जी। और रेट ऑफ स्कॉलरशिप 9th और 10th के लिए हजरत महल के लिए 5,000 रुपए सालाना और 11th और 12th के लिए 6,000 रुपए सालाना इनको दिए जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो है इसकी जो है वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, अगर आप इसमें अगर डाल देंगे तो scholarship.government.in, अगर आप इसको खोलेंगे तो कंप्लीट आपको जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगा, क्या सर्टिफिकेट देना है, क्या करना है। इसके जरिए मैं तमाम स्कूल इंतजामिया से, सरपरस्तों से और स्टूडेंट से इस बात की मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो ये वेबसाइट भी आ जाएगी, इस वेबसाइट के जरिए आप खोल के उसको कैसा कैसा करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हो रही है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 739-631-3971। एक बार रिपीट कीजिए। 739-631-3971। किसी किस्म की मुश्किल है तो हम रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। आपको जो भी किस्म की भी आपको तकलीफ हो रही है, आइए हम आपकी रहनुमाई करते हुए आपकी एप्लीकेशन को सही तरीके से अपलोड करेंगे। मगर इसके लिए स्टूडेंट्स, माँ बाप और स्कूल इंतजामिया की भी जिम्मेदारी बनती है राजेश साहब कि तमाम चीजें भूल के इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे तो यकीनन स्कूल इंतजामिया को भी इसका फायदा होगा, इनको फीस वक्त पे मिल जाएगी। तो मेरी खास तौर से स्कूल इंतजामिया से, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, इस जानिब तवज्जो देते हुए इन गरीब आवाम की अगर आप मदद करेंगे तो यकीनन एक बड़ा अच्छा इक़दाम होगा। अब इसके साथ साथ फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के पोर्टल, इसका पोर्टल आवाम से मैं खासतौर से बात करना चाहूंगा कि इसका पोर्टल ओपन हो चुका है 20/7/2022 जी। 20 जुलाई 2022 को इसका पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। आप इस पोर्टल के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आपसे यकीनन हम तो तैयार हैं आपकी खिदमत के लिए, आपको बताने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कहीं भी आपको कोई मुश्किल हो रही है तो हम आवाम से इस बात की गुजारिश करते हैं, असातिज़ा और हमारे सरपरस्तों से और नौजवान बच्चों से, खासतौर से आप तालीम इल्म हासिल कर रहे हैं बेटा, आपके लिए होना चाहिए, लड़कियों की और लड़कों के लिए, कि माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनकी थोड़ी बहुत परेशानी दूर करना है, तो आपको फौरन इंटरेस्ट लेते हुए स्कॉलरशिप के डाउनलोड आपको करना, अपलोड करना बेहद जरूरी है। तो पोर्टल जो है 20/7/2022 से खुल चुका है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन, ये एप्लीकेशन सबमिट करने की सितंबर 30 तारीख है लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन सबमिट करने की, बेगम हजरत महल एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की। लास्ट डेट ऑफ लेवल वेरिफिकेशन अक्टूबर में, इसकी वेरिफिकेशन अक्टूबर में होगा। फिर उसके बाद लास्ट डेट फॉर सेकंड लेवल DNO लेवल वेरिफिकेशन 31 अक्टूबर 2022 तक होगा जी।
तो ये जहन में रख लीजिए कि 20/7/2022 से 20 जुलाई से पोर्टल ओपन हो गया है। इसकी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है और वेरिफिकेशन की तारीख 16 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा। उसी के साथ साथ पोस्ट मैट्रिक MCM स्कॉलरशिप की ओपनिंग ऑफ पोर्टल ये भी जुलाई में ओपन हो चुका है। ये कौन सा है? पोस्ट मैट्रिक, इसमें ग्रेजुएशन तक। बेगम हजरत महल का नहीं है? नहीं, बेगम हजरत को ऊपर बोल दिया मैं ये। अच्छा, ये 30-20 से ये बेगम हजरत महल और प्री मैट्रिक का हो गया। अब जो बोल रहे हैं आप वो मरकजी हुकूमत की नहीं, ये दोनों भी मरकजी हुकूमत के से। ये जो है पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं, इसमें ग्रेजुएशन PhD तक है ये पूरा। तो इसकी भी जुलाई 20 से स्टार्ट हो गई है। इसका भी 30/10 तक जो है लास्ट डेट है सबमिशन की। इसकी 30 नवंबर है, सितंबर है। इसकी 30 अक्टूबर लास्ट डेट है पोस्ट ग्रेजुएशन की। और लास्ट डेट फॉर वो वेरिफिकेशन की 15 नवंबर है। फाइनल जो है 13-11 को जो है इसका फाइनल जो है वो होगा। तो इसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल जो है जुलाई 7 से स्टार्ट हो गया है। तमाम स्टूडेंट्स और तमाम असातिज़ा से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा कि स्टूडेंट की मदद करते हुए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन अपलोड करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद है कि नौजवान और उनके सरपरस्तान और तमाम स्कूल के अरबाब इस तरफ तवज्जो देते हुए वाजिद साहब आपकी तरफ से भी अगर कुछ इसमें अपील भी हो जाए तो अच्छा है। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा BPL पॉवर्टी लोगों को इसका फायदा पहुंचे। बिल्कुल शुक्रिया खालिद साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने तलबा और तालिबात को बहुत अच्छी मालूमात दी। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्कॉलरशिप्स के लिए आज ही अप्लाई करें और स्कॉलरशिप हासिल करते हुए आला तालीम की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें, खुद मुक्तफी बने, तो शायद जिंदगी में आप कामयाब भी हो जाएं। और आपका कामयाब होना हमारे लिए बाइस से मसरत होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आज की बात पैगाम TV। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।